Everyone, my name is Ilsa. I am currently a second year MBBS student at Dow Medical College, and I am very excited to welcome you all to the second day of our 59 minutes webinar series. This webinar series is being hosted by MedAngle Premed. Now, कल हमारी वेबिनार सीरीज का पहला दिन था और हमने अपनी कल की सीरीज में कल के वेबिनार में वी डिस्कस्ड इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हमने डिस्कस किया कि इन सब्जेक्ट्स को किस तरह पढ़ना है, किस तरह आने वाले हफ्तों में इनको प्रेप करनी है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने उसके बारे में डिस्कस की। नाउ इफ यू मिस्ड आवर वेबिनार yesterday, we have the recording on our YouTube channel, so you can get access to that after आज वाला webinar is over. Also, there's one very important thing that needs to be addressed right now. वो ये है कि आज अभी around 1 घंटा पहले PMDC की notification आई है कि the MDCAT has been delayed. और अब जो MDCAT है वो 10 सितंबर को होगा. तो you have an additional 2 weeks. आज इस वेबिनार में we're gonna tell you कि किस तरह आपने अपने आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में किस तरह पढ़ना है and how you're gonna utilize the 2 extra weeks to the fullest. Okay, and for today we have an amazing lineup of speakers. We're going to be having 2 speakers and we're going to be discussing logical reasoning or biology. और हम लोग बात करेंगे कि किस तरह इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, किस तरह पढ़ना है. नाउ लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जो अक्सर MDCAT एस्पायरेंट्स एंड के लिए छोड़ते हैं, तो we've got you covered. We're going to talk about it. और बायोलॉजी समथिंग जो एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, अक्सर लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते एंड तक, बट we're going to help you not just complete your syllabus, but also to revision it to revise it as quickly as possible and as effectively as possible. And not just that, हमारे वेबिनार का बेसिक मकसद ये है कि आज जब आप ये वेबिनार अटेंड करके पढ़ने बैठें, so you have a direction and you know what exactly you're supposed to do for the next few weeks. Okay, so without any further ado, let's just begin. Let's just dive straight into our webinar. And our very first speaker is Simal. अब जिन लोगों ने कल हमारा webinar attend किया था, they might remember Simal from yesterday. For today, Simal is going to be talking about logical reasoning. So over to you, Simal. Okay. Assalamu alaikum. So my name is Simal Arshad, and I'm from Akhtar Saeed Medical College, Rawalpindi. और आज I'll be covering logical reasoning. तो मैंने दिया था MDCAT back in 2022, और I managed to score 162 out of 200. So what did I use for my preparation? मैंने use किया था the platform MedAngle Premed, and it significantly helped me ace the MDCAT. As you know, logical reasoning has 6 MCQs, which can break or make your chances at getting into a medical school, which is why today I'm going to focus on this. So on the Premed site, as you have probably seen, there are smart topics for logical reasoning, which are basically topic arranged questions on logical reasoning. So firstly, let us go have a look at the contents for the logical reasoning section. I picked out this from the PMC syllabus, so you can see it from there as well. Firstly, we have the letter and symbol series, logical reasoning and logical problems. इसमें you'll basically get a series of letters or symbols, या दोनों भी मिल सकते हैं, or you need to find the pattern that they are arranged in. And so basically you can get this from practice, and you know, this is very simple. And then we have critical thinking, logical reasoning, and logical problems. So this is something that these 3 topics are, you know, we can put this into one type. The questions that we'll get on these will be basically कि एक problem दी होगी and we'll need to deduce the answer for that. Like for example, there will be a question on a family tree जिसमें आपको relations find करने होंगे. So again, that's something very easy. ये आप आसानी से attempt कर सकते हो. लेकिन just in case you cannot, we have logical reasoning videos on our YouTube channel, MedAngle Premed. की YouTube channel पर there are videos on logical reasoning, so you can go check those out as well if you have any problem in attempting the MCQs. We also have course of action.
So course of action mein what you will get is different situations jisme you will have to pick out the best solution for that situation. So it's very simple and I'm pretty sure you can definitely solve this. But again, if you cannot, YouTube videos se aap dekh sakte ho. And finally, we have cause and effect. In cause and effect type questions, आपको मिलेगा एक question, जिसमें there will be a cause and you will be required to find the effect. Yeah, there will be an effect, or you will need to find the cause. So obviously, these kinds of questions, they're very easy. They don't require book knowledge, or it focuses more on common sense and practice. So that was for the content section of the logical reasoning. Now, like I've mentioned quite a few times, I said that, we don't need books or anything for this. So what can you use to tackle the logical reasoning section? So मैंने personally use किया था. I use the platform MedAngle Premed for MCQ practice because, as you know, MCQ practice is very important, especially when you have no other means of, solving these kinds of questions, because there's no specific books for logical reasoning, right? On our site, we have different smart topics, and for logical reasoning, we have MCQs arranged topic wise. So you don't have to go and attempt all the questions because abhi time kam hai and we want to be as efficient as possible. Another thing you guys can do is कि हर high yield topic के सामने लिखा है कि this is a high yield topic. So you guys can just go and do those क्योंकि high chances है कि उधर से ही आएंगे. On MedAngle Premed, we have many MCQs for logical reasoning. And when I was doing it, I found those MCQs more than enough. So, I feel like that's more than enough MCQs for you guys to practice on. So logical reasoning is more of common sense. It focuses primarily on different problems, jo with a little math solve ho jate hain, and that math is very easy as well. And I know that you guys obviously have general knowledge on math, so that's basically all you need to tackle the logical reasoning section. And then a little bit of practice and you'll be good to go. I did mention earlier that, there are like videos, so if you want to go check those out, you can do that too. For me, I did full-fledged papers, and at the end, like in the paper, the logical reasoning questions that came, I just did those and I found that more than enough for me. So you can do those as well if you want to save time. So another thing that I'd like to talk about today are sleep-wake cycles and schedules. Now, this is something that I personally struggled with for a very, very long time, but when I finally figured it out, the game completely changed. Now, you must have heard from people कि हम पूरी रात पढ़ते, हम पूरा दिन पढ़ते. Now, in my opinion, that is inadvisable. And why am I saying this? क्योंकि you guys will learn later on in your medical studies about the circadian rhythms and how they're important for the proper functioning of our brain. This is basically scientifically proven as well that getting a good night's sleep is very, very important for productivity. And I personally did that too. And what I would do is I'd study till 11 p.m. after which I'd go to sleep and then I'd wake up at 7 a.m. This way I got a good 8 hours of sleep, which is very important, especially jab aap pura din padhte rehte ho. And I would take like a 30-minute nap in the day as well, kabhi kabhar, just to shake off any laziness or anything. Because obviously, if you're studying from 11 p.m. to from 7 a.m. till 11 p.m., you're bound to get tired. So now, I was an early bird. However, for the night owls as well, we do have on MedAngle, we have timetables. So you guys can just go and check those out as well. And following a proper schedule and having a good night of sleep can get rid of your anxiety and stress, and it leaves you so much more productive.
Moving on, हमारे platform पे, like I've said, we have YouTube videos for all of the subjects, and these YouTube videos are not very long either. They're all less than 5 minutes long, so you know, आप वो आसानी से देख सकते हो. For me as well, those were very helpful because you know, I'm not somebody who can sit and watch very long videos, and especially at such a crucial time, you don't even have time to watch hours long videos. So I feel like these are really, really helpful. And then we also have the learning lists, which have quick, easy information written in them. So if you have that information on your fingertips, you'll be good to go for the MDCAT. Anyways, this was all for the logical reasoning section. Thank you very much for listening to my tips and tricks to ace the logical reasoning section for the MDCAT. So much, Simal, for telling us about logical reasoning. I believe कि अब अगर यहाँ पे किसी ने अपनी logical reasoning की तैयारी शुरू नहीं की होगी तो उनको अंदाजा हो गया होगा कि अब क्या करना है. Logical reasoning is not a subject जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा time देना है, लेकिन I would advise कि do not skip it completely. You need to make sure you're practicing. You need to make sure कि जो topics Simal ने अभी बताए, जो topics PMDC के syllabus में है, you are actually going through them. Now, Abhi Simal mentioned that on our platform, we have questions and we also have past papers, we also have mock tests, and that is absolutely free of cost. So, Abhi, we're going to see कि किस तरह ये सारी चीजें access करनी है, किस तरह platform पे sign up करना है, if you already have an account, किस तरह code redeem करना है, and all of that. Now, the link that we use is called premed.medangle.com. तो we're gonna be seeing कि किस तरह platform पे sign up करना है, किस तरह account create करना है. So the very first step is creating an account. Now, to create an account, the link that you need to use is premed.medangle.com/join. Now, if in the audience you have your phones with you right now, or if you're connected through laptop and if you have your phone बराबर में, so I would urge you कि अभी आप अपना phone उठाएं and follow the steps with me ताकि आपका account अभी create हो and you can access all of our features for free right now. So एक बार, you know, once you type this link out and you click on enter, then this is the kind of window that will appear for you. Now, you're going to sign up. This is basically account creation के steps. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना नाम enter करना है. In my case, my first name is Ilsa. My second name is Ahmed. Now, once I type these out, I'm going to click next. इसके बाद I will be entering my email address. तो आपका जो भी email address है, whatever your email address is, वो आप इसमें enter कर लो. In my case, it's appearing on the screen. And once you're done, then you're going to click next and move on to the third step. तीसरे स्टेप में आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है. In my case, my intermediate college was Aga Khan Higher Secondary School. So we're going to type that out jaldi se. And once you're done, we are going to be moving on to step number 4. Step 4 में you need to create a password. कोई भी 6 characters का password आप create कर सकते हैं, लेकिन make sure that you remember that क्योंकि इन्हीं details से आपको login करना पड़ेगा. Once you're done, you're going to click submit. जैसे ही आप submit पे click करेंगे, there's going to be another page that will open for you. तो ये 4 steps हैं, very easy steps, कुछ भी नहीं है. You do not need to have any social media, Facebook वगैरह के accounts. You just need to have an email address. Once you're done, यहाँ पे आपके पास click here show हो रहा है. तो you're going to select click here. It says welcome, you registered successfully. Once you click here, आपके पास ऐसा page open हो जाएगा. अब आपने क्या करना है कि आपके पास ऊपर राइट हैंड साइड पे एक एक्सेस शो हो रहा है. there is a access का बटन. you're going to click that and then what you're going to do is कि जो अभी हमने details enter की थी, you're going to enter those again in the blanks given. For example, यहाँ पे email पूछा हुआ है, तो you're going to enter your email. In my case, it was ilsaahmed2000@gmail.com and जो भी आपने password वहाँ पे select किया था, you're going to add that in. And we're going to wait for the magic to happen. So once we're done, you've signed in successfully. आपका account बन चुका है. इसके बाद what you're going to do is कि आप दोबारा अपने browser पे जाके you're going to search for Premed. Once you're done, you're going to click here for Premed because we're Premed.
And once you're done, it is going to take you back to the main platform जहाँ पे आपके पास एक option आ रहा है menu का. You're going to जल्दी से click menu and then you're going to scroll down इस पहली वाली window में. You can see कि यहाँ पे हमारे features भी visible हैं. Like we have smart topics that are topic-wise questions. We have past papers. We have mock exams and whatnot. अब अकाउंट बन गया है, हम लोगों को सब चीजें फ्री में एक्सेस करनी है. वो किस तरह करनी है? यू कैन सी कि यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड माय सब्सक्रिप्शन. यू आर गोना क्लिक ऑन दैट और अब यहाँ पे यू विल बी एंटरिंग अ कोड. नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स विद मी, आई विल बी टेलिंग यू अ कोड. तो यहाँ पे इट सेज गुड इवनिंग इल्सा, यू डू नॉट हैव premedical.pk premium yet. अब we're going to be entering a code. The code is premed is free in caps lock. कोई spaces नहीं है, ये एक word है. Premed is free. And you're going to click redeem now. Once you're done, you will click redeem now. And the website will welcome you to the future of medical education. And this means you have successfully redeemed your premium access code. सारे features can be accessed for free. जितने भी MCQs हैं website पे सारे, we're not charging you anything for that. You have an extra 2 weeks, which makes this a total of around 3 से 4 हफ्ते. If you have not started using MedAngle Premed, I would urge you, because free of cost, you have nothing to lose. We have a lot of stuff on the platform. So just sign in right now, redeem your code right now, and start using MedAngle Premed. If you're using it, do let us know on our socials, हमारे guidance group में कि आपको किस तरह फायदा हो रहा है through the website. Now that we're done, we're going to be moving on. अच्छा, also before we move on, अगर किसी ने मेरे साथ follow नहीं किया and they want to scan these codes, जो 2 links मैंने बताए थे, they can scan these अभी. Join now का एक link है और एक code redemption का link है. Code redemption वाला link is directly going to take you to the redemption वाली चीज जहाँ पे आपको code enter करना है. You can take a screenshot for later or you can just scan it right now. So we're going to wait for 5 seconds. And up, we're going to be moving on to a very important part of this webinar, to a subject that is kind of favorite for most premeds, लेकिन क्योंकि उसका content बहुत ज़्यादा है तो अक्सर लोग बहुत घबरा जाते हैं, but we're going to be sorting it out for you. So for our next speaker, we have Yusha, and Yusha has been teaching biology. Yusha is currently a 2nd year MBBS student, and without further ado, I would like to hand it over to Yusha. Thank you so much, Elsa. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing well. So my name is Yusha Reddy. I'm a 2nd year medical student at Dow University of Health Sciences. और पिछले 4 साल से मैं biology पढ़ा भी रहा हूँ. Biology पढ़ाने का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ था कि when I was in my 1st year, I started teaching my friends from 1st year. फिर मैं 2nd year में आया तो मैं 1st year के और 2nd year के students को पढ़ाने लगा. And the moment I graduated from FSC, I was offered a position to teach biology at a reputed institution in Karachi. So मैंने बोला definitely I'm up for it, and then I started teaching professionally. So this is a brief introduction of mine, and अब हम बात करेंगे थोड़ी सी biology के बारे में. Physics, chemistry, English, logical reasoning, ये सब तो हम कल और आज already discuss कर चुके हैं. But if we talk about biology, तो देखें biology तो ऐसा subject है जो कि हम pre-medical students के लिए एक favorite subject होता है. For majority of the pre-medical students, बायोलॉजी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है. बट अगर उसके बावजूद भी हम में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी बायोलॉजी अभी तक शुरू भी नहीं हुई, तो क्या वो बायोलॉजी का अपना सिलेबस MCAT तक कवर कर सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल. आपने अगर बिल्कुल भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप तब भी उसको शुरू करके खत्म कर सकते हैं, दैट टू बिफोर MDCAT. ओके, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि स्क्रैच से बायोलॉजी किस तरह पढ़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको जैसे पता ही है कि MDCAT हैज़ बीन डिलेड, और अब आपका जो MDCAT है दैट्स गोना बी ऑन 10th of September. सो नाउ यू हैव 25 days रिमेनिंग फॉर द MDCAT. तो आपके वैसे ही जो डेज हैं, प्रिपरेशन के डेज हैं, आपको एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं. दिस इज अ गुड थिंग. अब सबसे नेक्स्ट, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद कि हम किस तरह से बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपने बायोलॉजी बिल्कुल भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो डू वन थिंग. सबसे पहले PMDC का सिलेबस उठाएं और उस सिलेबस के अंदर बायोलॉजी के सेक्शन में टोटल 15 चैप्टर दे रहे हैं. कंटेंट 13 है, जो टॉपिक्स ऑफ लर्निंग है वो 13 है, पर चैप्टर्स 15 इस तरह से, क्योंकि जो उसमें एक कंटेंट ऑफ लर्निंग है ये लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर टोटल 3 चैप्टर, तो टोटल आपके बनते हैं 15 चैप्टर्स.
आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने बड़े चैप्टर्स को और छोटे चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमेलिया इज अ लेंथियर चैप्टर, उसको एक तरफ कर लें। एंजाइम्स इज अ शॉर्टर एंड रिलेटिवली इजियर चैप्टर, तो उसको आप एक जगह कर लें। वंस यू आर डन मेकिंग द लिस्ट फॉर द लेंथियर एंड शॉर्टर चैप्टर्स, उसके बाद आप ये करें कि आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से प्लान करें कि अगर आप किसी दिन एक लेंथी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस दिन आप सिर्फ ये अपना गोल बनाएं कि आई एम गोना स्टार्ट एंड फिनिश जस्ट वन चैप्टर ऑफ बायोलॉजी टुडे। और अगर आप किसी दिन एक छोटा और एक आसान चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका ये गोल होना चाहिए कि आज मैं ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर शुरू करके खत्म कर लूंगा या कर लूंगा। ओके, अदर देन दैट इवन जो मैंने बोला कि आप एक चैप्टर या दो चैप्टर्स को लेंथी और शॉर्टर रिस्पेक्टिवली अपने दिन में प्लान करें, उसके बावजूद भी एक पूरा चैप्टर शुरू से एंड तक याद करने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा फॉर योर रिविजन, फॉर रिवाइजिंग अदर टॉपिक्स एंड फॉर सॉल्विंग MCQs। ये तो मैंने बता दिया कि भाई आपने किस तरह से अपने चैप्टर्स के को लेके चलना है, बड़े चैप्टर छोटे चैप्टर। पर लेट मी dive deep and tell you the strategy that you should be applying, the format you should be following for effective preparation of those chapters. आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बुक खोली, चैप्टर खोला जो भी आपने उस दिन प्रिपेयर करना है, शुरू से लेके एंड तक उस चैप्टर को आपने रीड कर लिया। नो, इसका कोई मतलब आपको समझ में आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ और सिर्फ पहली बारी में शुरू से एंड तक रीड कर लिया। Once you're done reading, then you take like a 2 to 3 minute break. अच्छा, वो जो पहली वाली रीडिंग है वो आपने बस 10 यूं करके जल्दी जल्दी से शुरू से एंड तक पढ़नी है। 10 से 15 मिनट में आपने चैप्टर रीड करके रख दिया, 2 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा चैप्टर को शुरू से रीड करना शुरू किया। However, when you're reading it for the second time, आपने करना ये है कि जो जो बातें आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना। तो पहली दफा सिर्फ रीड, दूसरी दफा रीड और अंडरलाइनिंग दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी आपने याद करना शुरू नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना। नाउ व्हेन यू आर डन हाईलाइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, आपने करना यह है कि आपने तीसरी बार में उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना शुरू करना। इस बार आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको आपने नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने जो आपने चीजें हाईलाइट की थी, जिनको अंडरलाइन किया था, आपने उनको याद करना शुरू करना है। एंड दिस टाइम आपने उन चीजों को अपने दिमाग में बिठाना शुरू करना है। यानी कि जो थर्ड रीड है, दैट वुड बी द टाइम जहां पे आपको सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दैट्स द मेन लर्निंग पॉइंट, दैट्स द मेन लर्निंग पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ दैट चैप्टर। तो थर्ड जो पार्ट है, अच्छा उसमें ऐसे नहीं करना है कि बस आप जल्दी जल्दी पढ़ें, नहीं, थर्ड पार्ट जो है उसमें आपने पूरा टाइम लगाना। आप एक एक पॉइंट को याद करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में ये क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर में वो क्या चीज़ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियोस के लिए अगर मैं कोई चैनल रेकमेंड करूं तो ऑब्वियसली प्रीमेड बाय मेडैंगल का अपना यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर रोज ब रोज वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। उन वीडियोस की सबसे अच्छी बात बताऊं, वो बहुत बोरिंग 1-1 घंटे के लेक्चर नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी 3 से 8 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोस होती हैं, जिनके अंदर शुरू से लेके एंड तक हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। और पूरे टॉपिक को इसकी एक एक इंपॉर्टेंट बात, वेदर इट बी फ्रॉम सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सारे बोर्ड्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। दैट टू इट 5 to 8 मिनट्स। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी रिसोर्स तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर आपने जब एक वीडियो देख ली उस टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आया था, अब आपको समझ में आ गया है, what you're going to do is कि then you're going to move on and start learning the remaining important point that you have highlighted. तो तीसरा पार्ट, आई एम अगेन सेइंग दिस, कि वो पार्ट है जिसमें आपको अपना सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, उसमें आपको अपनी सारी लर्निंग करनी है। Once you're done with the third part, that is learning all the important concepts, आपने क्या करना है, आपने खोलना है premedical.pk। उसके बाद आपने खोलने हैं हमारे स्मार्ट टॉपिक्स। मेडैंगल प्रीमेड पे बहुत सारे स्मार्ट टॉपिक्स गिवन है, यानी कि चैप्टर वाइज MCQs गिवन है। और आपने अब जो चैप्टर अभी प्रिपेयर किया है उसको, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना। क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा क्या, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, आप उन चीजों को एक तो रिकॉल कर पाएंगे, दूसरा जो अभी आपने इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है आप उसको अप्लाई करके आंसर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जब आप उनको अप्लाई करके आंसर्स निकाल पाएंगे तो उससे दो चीजें होंगी। एक तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, आप जो पढ़ रहे हैं वो चीजें आपसे जब पूछी जा रही हैं तो आप उनको बड़े अच्छे से आंसर दे रहे हैं। दूसरी बात, जो premedical.pk है या मेडैंगल प्रीमेड है, उसके अंदर
हर क्वेश्चन की एक एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है जिसमें we don't just tell why the correct answer is correct, but we also tell why the incorrect answers are incorrect. आप भले ही सवाल सॉल्व कर रहे होंगे राइबोसोम्स का, लेकिन साथ साथ अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स का के ऑप्शन है तो उनके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी। तो क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके 4 से 5 ऑर्गेनील्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। सो ये रिविजन के लिए भी बड़ा अच्छा है और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो अगर मैं जल्दी से समराइज करूं, पहली दफा तो सिर्फ जल्दी से बुक को रीड करना, दूसरी दफा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, तीसरी दफा चीजों को लर्न करना, सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, और चौथा पार्ट था एमसीक्यू सॉल्व करना। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपका जो 5वां पार्ट आएगा वो आएगा रिविजन। रिविजन एमसीक्यूज के बाद जो 5वां पार्ट आएगा वो आएगा रिविजन। रिविजन आप किस तरह से कर सकते हैं, दो चीजें आपके पास मौजूद हैं। अभी जैसे सिमल ने आपको बताया था कि हमारे पास मेडांगल की तरफ से कुछ रिविजन गाइड्स बनाई गई हैं, और इस रिविजन गाइड्स के अंदर क्या है, जो पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक समराइज करके लिख दिया गया। अगर आप रिविजन चाहें, या तो आप उस रिविजन को अपने जो क्या कहते हैं, जो आपने बुक को हाईलाइट किया है, आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप उन गाइड्स का सहारा लेके अपने रिविजन को और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पॉइंट पे अलग से नोट्स बनाना वोंट बी दैट इफेक्टिव। आप अपनी बुक को ही इस्तेमाल करें। बुक के अंदर ही अगर आपको कोई चीज लग रही है कि लिखनी एक्स्ट्रा चाहिए, आप उसको पेंसिल से लिख लें, बट नोट्स बनाने में सिर्फ आपका टाइम जाया होगा। एट दिस पॉइंट देयर इज नो नीड टू मेक नोट। और ऑल्सो अगर हमने रिविजन गाइड्स एक तरीके के नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं और वो आपके पास मौजूद है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग नोट्स, राइट? तो this is the strategy that you can apply: reading with highlighting, learning, question solving, revision. ये 5 steps आप फॉलो करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको अगर बताऊं तो इस पूरी चीज के बाद भी, इस पूरे तरह से चैप्टर को कवर करने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा जिसमें आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो था उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्क्रैच से बायोलॉजी शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका प्रिपरेशन तो हो चुकी है लेकिन सिर्फ रिवीजन रहता है। वो स्टूडेंट्स क्या करें? तो देखिए, अगर किसी का सिर्फ रिवीजन रहता है तो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि क्वेश्चन जो आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए एक बात है, आपसे एमकैट में ना तो वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ना तो वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। वो आपसे एट द एंड ऑफ द डे पूछने वाले हैं एमसीक्यूज। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ही आपको, जब आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये इंटरप्रेट कर पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि भाई इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। वो तो ठीक है, हमने पढ़ लिया डिफरेंट के लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये होता है और वो होता है। आपसे जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा वो कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, वो होता है। आपसे घुमा के कॉन्सेप्ट पूछे हुए होते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आपसे तभी हो पाती है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। रिवीजन, आप जो रिवीजन वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई नोट्स बनाए थे अपने नोट्स को पढ़ें, अगर आपने बुक के अंदर चीजों को अंडरलाइन किया था आप उनको गो थ्रू करें, और आप जो रिवीजन गाइड है मेडांगल की तरफ से उनको गो थ्रू करें, और उसको कॉम्प्लीमेंट करें क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ जो स्मार्ट टॉपिक्स मेडांगल पे मौजूद है, मेडांगल प्रीमेड पे। तो द थिंग इज कि दिस इज हाउ यू शुड गो अराउंड द रिविजन। आपने नोट्स पढ़े, रिविजन गाइड्स पढ़ी, हाईलाइटेड पार्ट्स पढ़े, और क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते गए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के एज आई मेंशन बिफोर कि आपको एक ही एक्सप्लेनेशन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए होते हैं। तो आपकी सिर्फ एक जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो प्रिपेयर नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ साथ आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो रहे होते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे तो हमारी बात होती है अब स्क्रैच से और रिविजन, बायोलॉजी के रिविजन करने से रिलेटेड। कुछ मैं अगर आपको एक्स्ट्रा टिप्स दूं जो कि आपको जो कि होती तो बिल्कुल बेसिक है, और लेकिन हम उनको फिर भी उसके बारे में इतना सोचते नहीं। अब मिसाल के तौर पे एक बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी क्या, सारे फिजिक्स उठा लें, केमिस्ट्री उठा लें, हर तरह के हर सब्जेक्ट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम कभी कभार मिस कर देते हैं, वो होती है डायग्राम्स। आप अगर देखें तो हमें बायोलॉजी की, अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करूं तो हमें बुक में बहुत सी डायग्राम्स दी हुई होती हैं और डायग्राम्स की अच्छी खासी लेबलिंग दी हुई होती है। हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट तो पूरा याद कर लेते हैं लेकिन हम डायग्राम को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, देख लेते हैं लेकिन बोलते हैं वी जस्ट लेट इट बी, वी डोंट
put too much concentration on the diagram. अगर मैं आपको बताऊं, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल, लेकिन 2 से 3 साल पहले जो सिंध में टेस्ट हुआ था, उसके अंदर जो सिंध के बुक का चैप्टर नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिंध बुक, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर ओल्ड सिंध बुक, उसका जो चैप्टर 6 है किंगडम प्रोकैरियोटी, उसके अंदर एक डायग्राम दी हुई है पहले ही पेज पे नीचे बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के डायग्राम के अंदर लेबल करके एक स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है जो कि कॉन्टेक्स्ट में उस बुक के अंदर कहीं भी नहीं, बाकी बुक्स में होगा लेकिन सिंध बोर्ड की उस वाली बुक में वो स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं दिया हुआ कॉन्टेक्चुअल बेसिस, लेकिन उन्होंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। तो 2 से 3 साल पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीएस के सवाल में कि द फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ऑप्शन में हमें दिए हुए थे ए बी सी डी ई। उनमें से एक ऑप्शन था ब्लेफेरोप्लास्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर होता है ब्लेफेरोप्लास्ट। अब ये बात उस बुक में लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन ये डायग्राम में उन्होंने लेबल करके दी हुई है, और जब उन्होंने डायग्राम में ये चीज लेबल करके दी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम में ये चीज लाजमी पूछ सकते हैं। तो डायग्राम्स को हमने बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है, हमने उनकी जो लेबलिंग है उनको बड़े अच्छे से देखना है और उनके ऊपर भी काफी कंसंट्रेट करना है। नाउ कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई यील्ड थिंग, जिसको हम अक्सर इग्नोर करते ही करते हैं। अगर डायग्राम्स को हम इतना इग्नोर ना करें, इस चीज को तो हम फिर भी कर देते हैं। वो ये होती है साइंटिस्ट के नेम्स, साइंटिस्ट की डिस्कवरीज और डिफरेंट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना है, या कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन से ईयर में डिस्कवर किया, इस तरह की चीजें हम मिस कर देते हैं। बोलते हैं ये थोड़ी हम कैट में पूछेंगे, बट दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। सबसे एमकैट में अगर मैं आपको लास्ट ईयर की कुछ स्टैट्स बताऊं, यूएचएस के अंदर जो लाहौर में टेस्ट हुआ था, टोटल 12 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें 11 न्यूमेरिक वैल्यूज पूछी हुई थी, यानी कि फलाना ऑर्गेनील का साइज कितना है, उस चीज का साइज कितना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फलाना इलेक्ट्रॉन के साइज की वैल्यू क्या है, इस तरह की चीजें पूछी हुई थी। 11 टोटल इस तरह के क्वेश्चन थे और एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी पूछी हुई थी। सिमिलरली जो ईटा का टेस्ट था, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का टेस्ट होता है, उसके अंदर भी 11 न्यूमेरिक वैल्यूज पूछी हुई थी, यानी कि साइजेस एंड कॉन्स्टेंट्स वगैरह, और 4 साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पूछी हुई थी। जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, इस्लामाबाद की कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंदर 15 न्यूमेरिक वैल्यूज थी और एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी। जबकि जो DUHS का टेस्ट हुआ था, उसके अंदर 14 न्यूमेरिक वैल्यूज थी और एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी। यानी कि ये सारी स्टैट्स मैं आपको 2022 की बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की। तो सोचे एक साल में पूरे पाकिस्तान में होने वाले तमाम टेस्ट में 12 से 16 क्वेश्चन वो सिर्फ वैल्यूज के पूछ रहे हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वी कैन इग्नोर देम, दीज आर सुपर हाई यील्ड, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या करें? अब क्या हम 6 की 6 बुक्स अपने बोर्ड की, यानी कि अगर कोई मैं सिंध बोर्ड, जैसे मैं सिंध बोर्ड से था, तो क्या मैं सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिजिक्स की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बायो की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 6 की 6 बुक्स दोबारा गो थ्रू करूं और एक एक वैल्यू को कहीं लिखूं और फिर उनको याद करूं? ये तो बहुत टाइम लेगा और मैं तो बहुत ओवरवेल्म हो जाऊंगा। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज मेडांगल प्रीमेड ने आपके लिए एक नया फीचर क्रिएट किया है, विच इज द लर्निंग लिस्ट। लर्निंग लिस्ट क्या होती है? लर्निंग लिस्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट और अ कॉम्प्रिहेंसिव फीचर, जहां पे वो सारी वैल्यूज जो कि 6 की 6 बुक्स में मौजूद है, वो सारी वैल्यूज इसके अंदर इनपुट की गई हैं। एंड यहाँ सरप्राइज खत्म नहीं होता, बल्कि ये जो लर्निंग लिस्ट बनाई गई है, ये चारों प्रोविंसेस के लिए 24 की 24 बुक्स के ऊपर लर्निंग लिस्ट बनाई गई है। भले ही कोई सिंध बोर्ड का हो, उसके लिए 6 की 6 अलग लर्निंग लिस्ट है, कोई फेडरल बोर्ड का हो उसके लिए 6 अलग लर्निंग लिस्ट है, कोई पंजाब बोर्ड का हो उसके लिए लर्निंग लिस्ट अलग है, केपी के बोर्ड का हो उसके लिए लर्निंग लिस्ट अलग है, उनकी बोर्ड की बुक से जिनमें वैल्यूज उठा के रखी गई है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि एक एक वैल्यू को अपने पास लिखें और फिर उन वैल्यूज को याद करें। आपके पास हमने ये फीचर ऑलरेडी बना दिया है जो कि आपके लिए अवेलेबल है। आप सीधा सीधा इनको ओपन करके इसमें से ये चीजें याद करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज प्रीटी मच अबाउट द लर्निंग लिस्ट। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें तो मेरे ख्याल में बायोलॉजी के ऊपर और लर्निंग लिस्ट के ऊपर भी मैंने काफी बात कर ली है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम जनरल टिप्स कि भाई हम अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करें। नॉट दी प्रिपरेशन बिट, नॉट द कंटेंट बिट की चीजों को याद कैसे करें, बट बेसिकली इट इज माय एडवाइस टू यू गाइस कि आप किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें टेस्ट के लिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको अगर टेस्ट डिले हो गया है और आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल गए हैं, आपने इसके अंदर ढीले नहीं पड़ना। अच्छा,
आपने इन दिनों के अंदर डीले नहीं पढ़ना और आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने तो तैयारी की भी थी, मैंने तो 10 दिन सोचे हुए थे कि 10 दिन के अंदर बस मैं इतनी पढ़ाई कर लूंगा तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। दिस शुडंट बी योर थिंकिंग, दिस शुडंट बी योर अप्रोच, बल्कि आपको अपने एफर्ट्स मैक्सिमाइज करने चाहिए, आपको अपना 200% लगाना चाहिए इन लास्ट डेज के अंदर। क्योंकि देखिए ये फाइनल पुश है, इट्स नाउ और नेवर। आपने इन 25 डेज में जो फुल मेहनत कर लेगा वो ही इज गोना एज द टेस्ट, और जो नहीं करेगा वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट। आपकी जितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप रिविजन करें, आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप फुल एंड पेपर सॉल्व करें, लेकिन यू हैव टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स फॉर दीज लास्ट डेज। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने जो जितना भी सिलेबस कवर कर लिया है और अभी आपके कुछ टॉपिक्स रह गए, पहले उन टॉपिक्स को करें जो आपके रह गए, और जो आपके रिविजन वाले टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़े बाद के लिए छोड़ें। अभी आपका फोकस होना चाहिए नई नई चीजों को याद करने के लिए। और वैसे भी क्योंकि एमकैट डिले हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएमडीसी की तरफ से आ चुका है, 10 सितंबर को अब आपका एमकैट है, तो आपने इन दिनों को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपने आप पे भरोसा रखें, और अगेन प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट में वो आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे, ना कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अच्छा, प्रैक्टिस से एक और फायदा पता है क्या होता है? कभी कभार टेस्ट में बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, और हम उन क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में था कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is resting on a surface if a force of 600 Newton is applied on it and the coefficient of friction is 0.2 the coefficient of friction is 0.2, और उसके अलावा ब्लॉक की क्यूबिक सेंटीमीटर वगैरह दिए थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। एंड पूछा हुआ पता है क्या था? व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन, पूछा हुआ वेट है, मास को उठाएं, 9.8 से मल्टीप्लाई करें जो ग्रेविटी की वैल्यू है, आपके पास उसका वेट आ जाएगा। तो वो आपको डराने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, नॉट डराने के लिए, वो ये असेस करते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर कितना फेथ है, आप कितने अच्छे से इन सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो आपको ये रियलाइज होता है कि जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, इनको सॉल्व करना और इनको समझना, इनको टैकल करना आपको आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा बहुत टेस्ट की स्ट्रैटेजी बताऊं, कोई ज़रूरत नहीं है पहले आपको बायो करने का, या पहले आपको फिजिक्स करने का, पहले केमिस्ट्री करने का। आप सिर्फ वो करें जो कि आपको लगता है आप बेहतर कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी सबसे अच्छा कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट करें। आपको लगता है फिजिक्स अच्छा कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट करें। कोई आपका दोस्त हो, कोई बहुत ही कोई आपके बोर्ड का टॉपर हो, आप मत परवाह करें, आप वो देखें कि भाई आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट कुड बी यू एंड योर पेपर, नॉट योर फ्रेंड्स पेपर, नॉट any acquaintances paper, it could be your and only your paper. अच्छा, उसके अलावा एक चीज मैं जल्दी से बताता चलूं, आपका जो एक वो होती है, वो क्या कहते हैं, ओएमआर शीट जो होती है, जिसके अंदर बेसिकली सर्कल्स होते हैं और आप उन सर्कल्स को फिल करते हैं आंसर्स के लिए। उस ओएमआर शीट को बड़े अच्छे से फिल कीजिएगा। अक्सर होता ये है कि हम ओएमआर शीट को फिल करते हुए ना एक सीक्वेंस गलत कर देते हैं। अब उस एक सीक्वेंस, मतलब आंसर था सी, मैंने लगा दिया डी। उस एक आंसर को गलत करने से मेरा सिर्फ वो वाला आंसर गलत नहीं होता, बल्कि अगले 4 से 5 क्वेश्चन जब तक मुझे ये रियलाइज ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे सारे ऑप्शंस गलत होते चले जाते। क्योंकि ऊपर वाले का मैंने डी लगा दिया सी समझ के, अगले ऑप्शन में मैं बी लगाऊंगा, अगले ऑप्शन में मुझे बी लगाना होगा तो मैं सी लगा रहा हूँ, उसके बाद डी लगाना होगा तो मैं सी लगा रहा हूँ। तो जो ओएमआर शीट होती है, आप उसको बड़े अच्छे से सॉल्व करेगा, अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक हाथ रखेगा और क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शंस पे आइएगा और ऑप्शन पे एक फिंगर रखिएगा, और फिर उसके बाद अपने जो आपकी ओएमआर शीट है उसमें पेन से ऑप्शंस के ऊपर होवर कीजिएगा, और फिर 2-3 दफा कंफर्मेशन करने के बाद उसको सर्कल कीजिएगा। सीक्वेंस आउट ना होने दीजिएगा, बिकॉज दिस वुड बी, मतलब अगर सीक्वेंस आउट हो जाती है तो दैट वुड कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। पेंसिल से आपको जो ओएमआर शीट होती है उसको फिल करना होता है। लास्टली, अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, 1-2 दफा पढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, उसको स्किप करें, आगे बढ़े, और वो क्वेश्चन नंबर अपनी आंसर बुकलेट के शुरू में या आखिर में मेंशन कर लें कि भाई ये वाले क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा
तो जितने भी स्क्रिप्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके पास एक जगह लिखे हुए होंगे, तो आपने क्या करना होगा, सिंपली उन क्वेश्चंस को एक एक करके आप खोल लेंगे। आपको यूं करके पूरे क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि मैंने कौन सा जो है उसको मैंने कौन सा आंसर किया, कौन सा आंसर नहीं किया। तो इसलिए ये जो स्क्रिप्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप कहीं पे लिख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि आपकी एग्जाम डे, प्री एग्जाम डे और पोस्ट एग्जाम डे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखें, एक बात याद रखें, एग्जाम डे से पहले एक दिन जो होगा, आपने कोशिश ये करनी है कि आप सेकंड लास्ट डे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। आपको लास्ट डे पे कुछ मत छोड़ेगा, वेदर इट बी रिविजन, लर्निंग न्यू टॉपिक्स और कुछ भी। लेकिन लास्ट डे आप कुछ भी क्या कहते हैं नहीं छोड़िएगा। मतलब क्या कि जितनी भी प्रिपरेशन आपको सेकंड लास्ट डे इसलिए करनी है क्योंकि लास्ट डे इज मेंट फॉर योरसेल्फ। आपने इतने टाइम से आप मेहनत करे जा रहे हैं टू अचीव अ गुड स्कोर इन द एमडीकैट, तो एक दिन तो आपकी बॉडी और माइंड डिजर्व करती है ना रेस्ट, कि आप अपने आप को रेस्ट दें और आप थोड़ा सुकून लें, ताकि अगले दिन जब आप टेस्ट में जाएं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगर किसी को ये हो कि यार मुझे लास्ट डे तो मुझे नहीं, मुझे तो एंजाइटी हो जाएगी मगर मैं लास्ट डे ना पढ़ूं, तो ठीक है पढ़ लें, लेकिन मैक्सिमम लास्ट डे के दोपहर 1 से 2 बजे तक, उसके बाद पढ़ाई नहीं करनी। उसके बाद आप क्या करें, आप एमसीक्यू सॉल्व करें थोड़ी देर, और शाम 5 बजे के बाद लास्ट डे आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। जो फुल लेंथ पेपर्स होते हैं बहुत सॉल्व करें, कोई वो मना नहीं है, लेकिन सेकंड लास्ट डे तक। लास्ट डे कोई फुल लेंथ पेपर सॉल्व ना कीजिएगा। उसकी वजह ये होती है कि फुल लेंथ पेपर जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो 200 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होती है। अगर ये सारी एनर्जी आप एग्जाम से एक दिन पहले दे देंगे तो एग्जाम डे फिर आप क्या करेंगे। इस वजह से कोई फुल लेंथ पेपर लास्ट डे सॉल्व नहीं करेगा, जितने करने सेकंड लास्ट डे तक सॉल्व करके खत्म करें। और लास्ट डे शाम 5 बजे के बाद तो आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना। लास्ट डे के शाम 5 बजे आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है, उनसे बातें करनी है, आपने अपने बहन भाइयों के साथ बैठना है, अपने दोस्तों से फोन पे बात करनी है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करना चाहें वो यूज करें, और ना आप बस म्यूजिक सुनना चाहते हैं म्यूजिक सुने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को सुकून दें, अपने आप को रेस्ट दें। बिकॉज अगले दिन आपने जाके, दैट वुड बी अ जंग का मैदान, यू वुड हैव टू बी एट, you would be in a war on the MDCAT day. इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, everyone would be at a war by himself or herself. तो आपने अगले दिन जब जंग पे जाना है तो एक दिन पहले तो अपने आप को सुकून देना पड़ेगा। विद दैट बीइंग सेड, इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा। वो लोग जो लास्ट डे 1-2 बजे तक स्टडी कर भी रहे हैं तो वो भी रिविजन करेंगे। नया टॉपिक कोई याद नहीं करेगा लास्ट डे। नया टॉपिक जो आप लास्ट डे याद करेंगे ना, वो अगले दिन एग्जाम में आपको वैसे आपको आएगा ही नहीं। अगर उसका क्वेश्चन सबको सामने हो तब भी आपको एज सच नहीं आ रहा होगा, तो फायदा नहीं है लास्ट डे कोई नया टॉपिक याद करने का। रिविजन थोड़ा बहुत कर ले। मैं तो रेकमेंड करूंगा सेकंड लास्ट डे अपनी प्रिपरेशन को खत्म करें, लास्ट डे चिल करें, मजे करें और अपने आप को अगले दिन के लिए प्रिपेयर करें। नाउ आपने करना ये है, लास्ट डे आपने अच्छा सा डिनर करना है और पूरा अपना न्यूट्रिशन तो आपने थ्रू आउट अच्छा रखना है। न्यूट्रिशन ना खराब नहीं करना। अच्छा ब्रेकफास्ट करें, अच्छा लंच करें, अच्छा डिनर करें। लास्ट डे आपने लाजमी डिनर करना है और एक जल्दी अच्छे टाइम पे सो जाना, ताकि आप अगले दिन सुबह उठ सकें, जो भी आपकी प्रेयर का मोड है आप उस प्रेयर को प्रैक्टिस कर सकें, और फिर आप टेस्ट देने के लिए एक फ्रेश माइंड के साथ, एक अच्छी नींद के साथ जा सकें। अगर आप नहीं सोएंगे, आप टेस्ट में बहुत बेसिक चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया इज द डैश ऑफ द सेल, यानी कि पावर हाउस, आप वो भी गलत करके आएंगे अगर आप रात भर नहीं सोए। तो आई एम स्ट्रेसिंग दिस अ लॉट। अभी 25 दिन है, 25 दिन जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन लास्ट डे आपने सिर्फ अच्छे से मजे करना है और सोना है। एग्जाम के डूज एंड डोंट्स जल्दी से मैं आपको बताता चलूं। आपने क्या करना है, आपने उठे, आपने जो भी अपनी प्रेयर है उसको प्रैक्टिस की, फिर आप टेस्ट देने जाना है। आप टेस्ट डे क्या चीजें नहीं लेके जा सकते, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पानी लेके जाएं, लेकिन एक सिंपल एक्वाफीना की या नेस्ले की जो बड़ी बोतल होती है वो ले जाएं। कोई फैंसी सी बॉटल अपनी है, कोई फैंसी सा सिपर नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि भाई ये आप बाहर रख दें, तो आपका टेस्ट में पूरा ध्यान अपने सिपर की तरफ रहेगा कि यार व्हाई डिड आई ब्रिंग दैट, आई शुडंट हैव ब्रॉट दिस, और आप उसके ऊपर ध्यान लगाते रहेंगे। तो कोई सिपर नहीं रखना है, सिंपल पानी की बोतल रखिएगा। स्टेशनरी वो जो सिंपल प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट वाला पाउच आता है उसमें रख के लेके जाइएगा। कोई फैंसी सा पाउच रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो आपको स्टेशनरी भी प्रोवाइड करें, जरूरी नहीं है लेके लाजमी जानी है, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए सब बिल्कुल बेसिक लेके जाएगा। स्मार्ट वॉचेस और हेल्थ ट्रैकर्स, ये सब जो बैंड्स वगैरह आते हैं, हेल्थ बैंड्स वगैरह, ये आप पहन के नहीं जा सकते, वो ले लेंगे।
आप सिंपल सी घड़ी पहन के जाएं जो सिर्फ आपको टाइम बताए, दैट्स इट। तो उसके अलावा आपको अपना क्या कहते हैं एडमिट कार्ड लेके जाना है, NIC लेके जाना है, एंड दिस इज इट। अगर एग्जाम सेंटर के बाहर कोई आपको, आप किसी को देखें कोई बहुत बोस्ट कर रहा है और अपने आप को क्या कहते हैं बहुत बोल रहा है कि भाई ये तो इतना आसान है, वो तो इतना आसान है, आपको अगर कोई ऐसा दिखे, इग्नोर कीजिएगा। वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ बोस्ट करते हैं और दूसरों को क्या कहते हैं एंजाइटी थोड़ी बहुत दे रहे होते हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। दैट वॉज प्रेटी मच इट फ्रॉम माई साइड। बस मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि देखें, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, और मेहनत सिर्फ ये 2 महीने MD कैट के आपने मेहनत नहीं की। जिस दिन आपने प्री मेडिकल में कदम रखा था और ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे MCAT देना है और मुझे डाउ जाना है, आपकी मेहनत उस दिन से ही शुरू हो गई थी। जो आप सुबह सुबह 6 बजे उठ के अपने कॉलेज जाते थे और वहां से थक के आके MCAT क्लासेस में या कोचिंग जाते थे, वो भी आपकी मेहनत का पार्ट है। किसी मुश्किल क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, ना कि टीचर के ऊपर छोड़ना, और अपनी एफर्ट्स लगा के, टाइम लगा के उसको खुद से सॉल्व करना, वो भी आपकी मेहनत थी। तो ये जो 2 महीने MCAT की प्रैक्टिस है, ये तो आपकी मेहनत है ही है, लेकिन जब से आपने अपनी पढ़ाई के लिए जो जो एफर्ट्स किए हैं, वो सारे के सारे एफर्ट्स आपकी मेहनत में काउंट होता है। एंड एवरीथिंग इज गोना build up when it comes to the decision on your MDCAT। तो मेहनत आपने बहुत की है, इस चीज का भरोसा रखें। और आप पिछले 2 साल से या 4 साल से, जब से आप 9 में आपने बायोलॉजी ली थी, तब से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दिस इज द फाइनल पुश। यू डोंट हैव टू, मतलब इसमें ढीले नहीं पड़ जाना। आई एम सेइंग दिस अगेन अगेन, ढीले नहीं पड़ना। अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को आपने इन डेज को यूटिलाइज अच्छे से करना है और अपना 200% आपने प्रोवाइड करना है। एंड इंशाल्लाह यू आर गोना एज द MDCAT। थैंक यू सो मच, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। बैक टू यू विल्सा। Thank you so much, Yusha. Now, I really hope कि Simal और Yusha के बताने के बाद they brilliantly explained how to cover logical reasoning, how to cover biology. इसके अलावा we also discussed कि किस तरह एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, एग्जाम दिन पे क्या करना है, किस तरह चीजों को लेके चलना है, and all of that. Moving on, we have a few surprises for you. Now we know कि अब MDCAT extend हो गया है. तो let's say if somebody here in the audience is still completing their syllabus, तो we would recommend कि अभी आप अपना syllabus लेके चलें जिस तरह चल रहा है, ठीक है? Coming week में you can just finalize whatever is left. जो जो चीजें रहती हैं उनको सही से कर लें. जो जो नहीं आता, for example बहुत सारे लोगों को Kingdom Animalia नहीं आता, तो you can just do that stuff. और उसके बाद once you're done with your syllabus and let's say उसके बाद आपके पास तकरीबन 15 to 20 days रहते हैं, उसमें we would recommend that you use our 15-day revision schedule. This has been created specially for students जिनको schedule create करने में मसला होता है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम देना है. For example, if you think कि मेरे पास practice का टाइम नहीं हो रहा, तो this schedule will tell you कि किस दिन पे क्या पढ़ना है, exactly क्या टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या कितनी देर देनी है प्रैक्टिस को, कितना टाइम देना है हर टॉपिक को. And this is absolutely free of cost for everybody here. There's a QR code that will be appearing on your screen. You can scan that and get access to our 15-day revision schedule. And once you're done with the 15-day revision schedule, जिस तरह I mentioned earlier, कि 20 days आपके पास remaining हो, तो आप ये follow करना शुरू करें. End पे what you're supposed to do is that you're supposed to solve mock tests. अब बात आती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे we have a generalized mock test, लेकिन इस बार MDCAT provincial हो रहा है, तो MedAngle Premed has created provincial MDCAT mock tests for you. These will be coming out very soon. Make sure to follow us on our socials. If you're not a part of our guidance groups, you can comment down in the YouTube chat and we will add you to our guidance groups ताकि you can know कि क्या चीज कब release हो रही है. इसके अलावा I just went through the live chat right now and we have a lot of people asking के physics के formulas याद नहीं हो रहे, physics किस तरह करनी है, formulas भूल जाते हैं. तो for that, MedAngle Premed has a formula sheet that has been designed in a way that will help you tackle every MDCAT numerical in physics. किस तरह formulas से formula drive होते हैं और उस तरह. तो you do not need to search formulas. You don't need to search through किसी भी किताब के pages. You just have a formula sheet और उसको आप सामने रख के numericals करें. You can scan this right now, right here and get access to our formula sheet.
इसके अलावा this was discussed in detail कल, लेकिन I'm going to emphasize on this a little more right now कि हमारे पास review guides हैं. Now, if there's somebody here who thinks कि मेरी तैयारी हो गई थी and now I have an additional 2 weeks, तो अब मैं क्या करूं? I will forget stuff, चीजें मेरी memory से drain होना शुरू हो जाएंगी. What am I supposed to do? So you are supposed to get access to our review guides. You can scan this code right now and get access to it for free. और इसमें basically सारे major points cover होंगे for bio, for chem and for physics. And if somebody here is appearing for the AKU test on Saturday, तो हमारे पास एक AKU की भी guide है for AKU का reasoning section, for AKU का non-reasoning section, जहाँ पे a lot of people, face trouble doing that. तो वहाँ पे math reasoning और जो math reasoning basically, वहाँ पे you can get access to the guide as well for AKU, and all of this is absolutely free of cost. So you can just quickly scan these QR codes right now, or you can take a screenshot. Moving on, we have a very important segment planned for you आज के लिए, that is our live Q&A. So what we'll be doing is that we will be going through our live YouTube chat, और जो भी आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, we're going to be answering them. Our expert panel for today is going to be answering those questions. तो अगर आपने अभी तक अपने सवाल नहीं drop down किए, तो I would urge you कि just ask questions right now, and we're going to be answering them for you. So सबसे पहले जो एक सवाल है, I'm going to answer that myself. वो सवाल ये है कि हमने learning lists की बात की है, तो learning lists क्या है और वो कब रिलीज होगी? तो जिस तरह यूशा मेंशन कि learning lists बेसिकली ये हैं कि MDCAT में जो है वो बहुत सारे सवाल आते हैं जो प्योरली डाटा बेस्ड होते हैं. कोई वैल्यू पूछ ली, कोई साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया, और वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होती हैं. सिंध में अलग होती हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज होती है, पंजाब में अलग, KVK में अलग. We have created learning lists for your ease, ताकि you can have everything at one place. अगर एक सिंध का बच्चा है, if they've got a lot of time on their hands, you can go through learning lists for Punjab or for KPK to make sure कि आपकी जो preparation है वो बिल्कुल top notch है. So these will be released very soon in the upcoming days. Again, make sure that you follow our socials and you're a part of our guidance groups. Okay, इसके अलावा we have a question that हमें guidance जो guides हैं वो कहाँ से मिलेंगी? तो can we go back to the previous slide जहाँ पे we have the QR codes? You can scan this QR code on your right for review guides, and you can get access to them right now. Okay, इसके अलावा we have a few other questions. Okay, तो I believe this question is for Yusha. Yusha, एक सवाल है कि अगर किसी ने अभी तक biology की prep शुरू नहीं की, तो can they still cover biology in the days that are remaining? और अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं? And that's a question for which we had a segment at the start of the webinar. तो आप बिल्कुल अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से बायोलॉजी की प्रिपरेशन शुरू करके खत्म करके बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं. आप उसमें आप उस पूरे सेक्शन को पूरा एस कर सकते हैं. किस तरह से आप उसको एस कर सकते हैं? हमने इस वेबिनार के शुरू में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताया था कि कौन सी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें. तो द मोमेंट वी एंड द लाइव वीडियो, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल MedAngle Premed पे मौजूद होगी. आप उस पार्ट को देख के या इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं. Lovely, thank you so much, Yusha. अच्छा, हमारे पास एक और सवाल है, and I believe that question is for Simal. तो Simal, we have somebody asking in our YouTube chat कि logical reasoning के बहुत कम सवाल हैं, तो they basically want to know कि is that something कि वो end के एक हफ्ते में करें, और would you recommend कि वो अभी से करना शुरू करें? I feel like for logical reasoning, like I said before, like practice is very important, and because there's only 6 questions for it, right? So, and it's quite easy as well. Feel like they can do it at the end of the the last week. It's very easily done. You can do it in the last week as well. Okay, you can do it in the last week as well. लेकिन again that depends. अगर आपके major subjects अभी रहते हैं, तो we would recommend कि आप पहले उनको complete कर लें. लेकिन if you're done with your preparation, तो फिर you can practice थोड़ा every day for logical reasoning as well. इसके बाद we have another question that says, can we still cover the chem syllabus if we start right now?
all the organic and inorganic prep is weak. तो उसके लिए वो I would suggest is कि हमारा जो कल webinar हुआ था on our day 1, we answered majority of your queries related to chemistry. Our speaker, she brilliantly described कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो आप किस तरह कर सकते हो, organic, inorganic में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें करनी है and everything. इसके अलावा तो आई वुड अर्ज के इस वेबिनार की एंड पे यू जस्ट गो एंड चेक आउट हमारे कल के वेबिनार की रिकॉर्डिंग व्हिच इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. इसके अलावा वी हैव अ क्वेश्चन दैट सेज, एंड आई बिलीव सिमल विल बी एबल टू आंसर दिस वन, where should we study English from? Now this was discussed yesterday, but Simal, could you just jaldi say summarize it for us? Yeah, English you can study from any grammar book. It just requires, you know, any grammar book, and you can study English from. Other than that, I did mention one book yesterday, Wren and Martin, which is a book. However, the information in there is very deep. So like I said yesterday as well, you can refer to that as well. But any grammar English book would be perfect for the revision. Oh, perfect. Thank you, Simal. We have another question, and I would want Yusha if he could answer this one. So, Yusha, the question says, can we erase our answer on the bubble sheet if we have made a mistake? Okay, so the answer to the question is, if you have marked the answer from a pencil, then you can definitely erase it, और आप दूसरा mark कर सकते हैं. Although obviously अगर आपने pen से उसको mark किया तो you can not erase it. जब भी recommended यही होता है कि आप pencil से solve करें, लेकिन आप वही follow कीजिएगा जो कि PMDC अपनी guideline में बताए. Okay, perfect. ठीक है. Yusha, we have another question. The question says, should we read chemistry and physics books or only biology for books? Okay, for MDCAT, you must read the physics and chemistry books. That is a must. That is a must. आप उसको छोड़ नहीं सकते कि बस मैंने अपने नोट्स पढ़ लिया, वो पढ़ लिया. नहीं, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. अगर बुक्स के अंदर आपको वैल्यूज या साइंटिस्ट वगैरह थोड़े मुश्किल लगे, we have learning lists for them. और अगर आपको चैप्टर्स की समरीज चाहिए तो we have review guides for them. तो you can complement them with the book. आपको बुक का कंटेंट बहुत आसान लगेगा. Okay, perfect. Thank you, Yusha. Also, Yusha, there's a follow-up question आपके पिछले वाले आंसर पे कि बबल शीट पेन से फिल करनी है या पेंसिल से? आपने वैसे तो पेंसिल से और पेन से दोनों से की जा सकती है, बट जो पीएमडीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकलेगा उसके अंदर मेंशन होता है, आप उसको फॉलो कीजिएगा. Okay, perfect. Thank you, Yusha. We have another question here, and I believe Simal would want to answer this one. Simal, the question for you is how to learn vocabulary words for English. And the person who has written this comment finds it very difficult to memorize vocabulary words. So, wo kis tarah karna hai? Yeah, that was an issue for me as well, because like I mentioned yesterday as well, you know, there's so many words, there's so many English words, so it's impossible to just remember all of them. So my technique for these kinds of questions was to practice MCQs, because usually ऐसे होता है कि जो एक बार the word, which word has come, it usually gets repeated. You know, so I would say do MCQ practice. So others say you should be fine. You know, you learn the vocabulary very easily from there. All right, Simal, thank you. I believe that would help. Okay, there's another question that says, is it possible to cover the whole syllabus in just 25 days? Now, I want to answer this one. अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, if you think आपकी preparation अच्छी नहीं है, but you have 25 days, you can turn your preparation upside down in these 25 days. So I would say 1 minute भी ज़ाया नहीं करना. I believe इस webinar के बाद you have a direction, you know where to begin, you know what to do, and you can just sit down right after this webinar and you can make a timetable खुद से, या फिर you can follow our 15-day timetable. उससे 15 days में आपका syllabus हो जाएगा सारा, and 15 days के बाद भी you will have 10 more days for practicing and for everything. This reminds me that we have another question which says कि practice नहीं की रही, तो पढ़ तो सब लिया है लेकिन practice नहीं की, तो अब क्या करना है? So again, what I would recommend is that you still have a lot of days. You can not just practice, but you can revise your entire syllabus all over again. So while revising, this is something that I used to do when I gave my MDCAT 2 years back.
कि मैं एक टॉपिक पढ़ती थी, even let's say on a certain day I think कि मेरे पास टाइम, let's say मेरे पास टाइम कम था, तो मैं एक टॉपिक पढ़ती थी. I would, if I'm on short on time, I would read it superficially, but I would not compromise on the practice, क्योंकि practice is extremely important. Like Yusha mentioned पहले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, you wouldn't know कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा. You would just go ahead reading एक बुक, वो आपको एग्जैक्ट लाइन उठा के रेयरली देगा, वो उसको घुमा फिरा के ही पूछेगा. तो if you're somebody who hasn't practiced, हम लोगों ने पूरा डेमो कराया था प्लेटफॉर्म का. We told you how to sign up, we told you how to redeem the free access code. So you really do not need to go over practice books at this point in time. You just need something that's quick, that's fast, and for your ease, you have MedAngle Premed for you. I believe if we do not have any further questions, we have one last question. And Yusha, I think you would want to answer this one. And this is going to be the last question that we're going to be taking. So the question says, only high yield chapters करने से MDCAT clear हो जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखें तो PMDC का पूरा सिलेबस ही क्या कहते हैं, हाई यील्ड है, और आप किसी भी चैप्टर में से MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो हमने अपनी कल की और आज की सेशंस के अंदर हाई यील्ड टॉपिक दिए थे, अगर आप वो सारे कवर करते हैं तो येस, यू वुड बी एबल टू एस इट, बट प्रोवाइडेड कि आपको वो सारे चैप्टर्स बड़े अच्छे से करने होंगे, और उनके जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है. क्योंकि एज आई मेंशन बिफोर कि प्री मेडिकल बाय मेडएंगल पे या प्री मेड बाय मेडएंगल पे आपको स्मार्ट टॉपिक्स की जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, उनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ एक्सप्लेन किए गए होते हैं. तो आपकी एक क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो रहे होते हैं. तो या Okay, perfect. Thank you, Yusha. We also have a list for high yield topics, so we're going to be sharing that on our guidance groups. Make sure you're a part of those groups. That being said, this brings us to almost the end of our webinar. Before we end, I just want to say a few things. सबसे पहले, thank you so much for tuning into our 2-day webinar series. We really hope कि आपको इससे फायदा हुआ हो. इसके बाद, there's just one little thing that I would want everybody here to keep in their mind. वो ये है कि MDCAT के जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो लोग पीपल हु सिट फॉर द टेस्ट, उनका जो रेशियो होता है वर्सेस द सीट्स का रेशियो, उसमें काफी वाजे डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर 2 लाख बच्चे अप्लाई करने हैं, जो यूजुअली 2 लाख से ज्यादा होते हैं हर साल, द सीट्स आर ऑलमोस्ट अराउंड 8,000. Now, this demotivates a lot of aspirants, especially people जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी तैयारी 100% नहीं है, या फिर my friends are studying more than me, मेरे दोस्तों ने सिंध भी पढ़ लिया है, पंजाब भी पढ़ लिया है, अब वो फेडरल से रिवाइज कर रहे हैं, तो you would think कि नहीं, मुझसे नहीं होगा. That mindset is not going to help you, because the MDCAT is a very important test, maybe the most important test of your life for most of us here. So you need to make sure that you're confident. You need to make sure that you believe in yourself. This is something that I used to do. This is something I tell a lot of people कि seats को आप भूल जाओ. अगर even if you think कि 2 लाख बच्चे apply कर रहे हैं और एक seat है, you are gonna get that one seat. Because if you don't believe in yourself, तो सारी तैयारी, सारी revision वो किसी काम की नहीं होगी. You need to remind yourself constantly that I am going to do it. I am going to make it to my dream medical college. And this is the same mindset that you would want on the exam day. क्योंकि तैयारी सब करके जाते हैं. What makes you different from, what makes a normal MDCAT scorer different from somebody who's scoring very high is the mindset, is that you're mentally present while you're doing the exam. All-nighter pull नहीं करना, coffee पे ज़्यादा rely नहीं करना right before your test. Just make sure you're taking care of your health, because you need to prioritize yourself. And इसके बाद you need to make sure you're giving your 100% and you're keeping one thing in mind कि जो भी होगा will be better for you. So with that being said, I just want to wish everybody here, everybody who's watching us right now, a very best of luck from everyone here at MedAngle Premed. And we have a lot coming up for you. Since MDCAT extend ho gaya hai, we have a lot of things in store for you. Make sure you're following our socials. You can, they're appearing on your screen right now. We're on Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, and on Twitter. And we have recently launched our YouTube channel, और उस पे हमारी जो videos हैं वो regularly upload होती रहती हैं. Make sure that you subscribe and make sure that you check our YouTube channel daily to make the most out of the next upcoming days. That being said, thank you so much for tuning in again, and we wish you the very best of luck and good night from all of us here.